Good morning, all. In today's session of salary, I will start with the perquisites, which is defined under section 17 subsection 2. Perquisites indicate some extra benefit in addition to the amount that may be legally due by way of contract or services rendered. It may be provided in cash or it may be provided in kind. Reimbursement incurred in the official discharge of duties is not a perquisite. Okay, it may arise either in the course of employment or in the course of profession. ठीक है, if it is in course of employment it will taxable as salary, but if it is in the course of profession it will be taxable under the head PGBP. Okay, so if it arises from employee-employee relationship, then value of perquisite will be taxable as salary. However, if it arises during the course of profession, the value of perquisite is chargeable as profits and gains of business and profession. Okay, so this is the basic definition of perquisite, which is defined under section 17 subsection 2. Now we will start with the leave travel concession. If an employee goes on travel on leave with his family and traveling cost is reimbursed by the employer, then such reimbursement is fully exempted. Journey may be performed during the course or after retirement. Employer may be a present or former. It must be performed to any place in India. Employee may or may not be a citizen of India. So to whom these benefits are available? The first is employee himself and his family members. And family members includes the dependent parents, brother and sister. Dependent parents, brother and sister, spouse and children. In this LTC, only basic fare is exempt, means the lodging charges, boarding and lodging, conveyance, all will be taxable. If LTC is encashed without performing journey, it will be fully taxable. The next point is a block period. For what period exemption is available? The exemption is available in respect of 2 journeys performed in the block of 4 calendar years commencing from 1st January 1986. If I talk about the academically, then it is for the assessment year 2021 to 22, means the relevant block will be the January 18 till December 2021. Next is the restriction on the number of children. In this, the exemption can be claimed for any number of children born on before 13/9/1998. ठीक है, if it is born before 13 September 1998, exemption can be claimed for any number of children. ठीक है, in addition, exemption is available only for 2 surviving children born on or after 1st October 1998. 2 surviving children, but however, children born out of multiple birth after the first child, means first is first child, then multiple birth after first child, then it will be treated as 2 child, means it will not be taxable. Then the monetary limits. In this, that if journey performed by air, there are some questions you have to go through. First is the journey performed by air. So in that case, the economy class fare by shorter route is exempt. If the journey performed by rail, first class AC fare is exempt. If the journey is performed by any other recognized mode or not, if yes, then first class deluxe fare is exempt. If not, the first class AC fare will be exempt. So I will repeat. If the journey performed by air, the economy class fare by shorter route is exempt. If the journey performed by rail, first class AC fare is exempt. If the journey performed any other recognized mode, if its answer is yes, then first class deluxe fare is exempt. If this answer is no, then the first class AC railway fare is exempt. ठीक है, एक बार इसके लिए इलस्ट्रेशन में 10 and 11 देख लेते हैं हम. ठीक है, ये दिस विल completes your LTC. Okay, so go through a question. Wait, illustration number
We talks about 10 and 11 now. Wait. If it is from IC में है, ICA story mat. Wait, huh? I think I have illustration number. वेट सॉरी, हाँ मतलब थोड़ा सा टाइम लग रहा है मैं देखने में. आई थिंक इट्स फ्रॉम ICI. illustration number 10. Yes, it's from ICI study mat. Sorry, I have to recorrect it. It's from ICI study mat 10 and 11. ठीक है, हम इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है. मिस्टर डी वेंट ऑन अ हॉलीडे ऑन 25 December 2020 टू दिल्ली विद हिज वाइफ एंड 3 children, and one son age is 5 years and twin daughters age is 2 years. They went by flight economy class and the total cost of tickets reimbursed by the employer was 60,000, 45,000 for adults and 15,000 for 3 minor children. तो हम इसमें कितना LTC एग्जाम होगा हमें देखना है. अब इसमें जो मैंने अभी चिल्ड्रन वाला बात किया था, फर्स्ट चाइल्ड होगा, ठीक है. उसके बाद अगर मल्टीपल बर्थ हैं फर्स्ट चाइल्ड के बाद तो 2 ही मानेंगे एंड नॉट टैक्सेबल होगा. तो हम इसमें क्या एज है चिल्ड्रन की पहली, फिर 5 years का है मतलब सन बड़ा है, देन ट्विन डॉटर्स है मतलब फर्स्ट चाइल्ड है देन ट्विन डॉटर्स है, ठीक है. एंड दे वेंट बाय इकोनॉमी क्लास, फ्लाइट से गए थे, ठीक है. फ्लाइट है तो इकोनॉमी क्लास का फेयर एग्जाम होगा. एंड टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स रीइंबर्स्ड बाय हिज एम्प्लॉयर वाज 60,000, 45,000 फॉर एडल्ट एंड 15,000 फॉर 3 माइनर चिल्ड्रन. 45,000 एडल्ट्स के लिए एंड 15,000 फॉर 3 माइनर चिल्ड्रन. बट अभी हमने पढ़ा था, एक मिनट, इसमें क्या आएगा. सिंस द सन एज इज मोर देन ट्विन डॉटर्स सो मिस्टर डी कैन अवेल एग्जाम्पशन फॉर ऑल ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन. ऑफकोर्स मैंने बोला था कि सिर्फ 2 ही काउंट किए जाएंगे, मल्टीपल बर्थ है फिर भी हम 2 ही काउंट करेंगे. तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन इज नॉट एप्लीकेबल टू मल्टीपल बर्थ आफ्टर 1 child. एंड holiday being in India and the journey being performed by air class, तो entire reimbursement made by the employer is fully exempt. ठीक है. तो उसका मैंने बोला था फर्स्ट फ्लाइट से किया है तो फर्स्ट इकोनॉमिक क्लास से जो फेयर होगा वो इंटायर रीइंबर्समेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर विल बी फुली एग्जाम. ठीक है. अब इसमें थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया है कि अगर इस इलस्ट्रेशन में will there be any difference if among his 3 children the twins were 5 years old and the son is 3 years old. Yes, it will make difference of course. ठीक है. अगर ट्विंस मल्टीपल बर्थ ही पहले हो गए हैं तो इट विल काउंट एज अ 3 children. इट विल काउंट एज अ 3 children. सो एग्जाम्पशन फॉर 1 children विल नॉट बी गिवन. दैट इज़ 15,000 आपका उसमें एक्सपेंस लगा था, 15,000 लगा था, है ना. 15,000 3 माइनर चिल्ड्रन के लिए लगा था. ऑफकोर्स 1 के लिए नहीं मिलेगा, 2 के लिए मिल जाएगा. बट 1 will be a taxable, means 15,000 divided by 1/3 into 1/3 then that will be 5,000. तो LTC would be exempt only for 55,000 not for 5,000. ठीक है. 5,000 will be your taxable LTC. ठीक है. It covers your 10 and 11 all their short questions but इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. तो ये ऑफकोर्स आपके ये क्वेश्चन के अंदर इनबिल्ट होंगे तो आप और क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं. बट मुझे जो क्वेश्चंस जो पॉइंट थोड़ा मेन इसमें लगा समझाने वाला जिसमें गलती हो सकती है मैंने वो एक बार ले लिया. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द मेडिकल फैसिलिटी बेनिफिट अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स. अभी मेडिकल फैसिलिटी किसको मिलती है, ये बेनिफिट किसको मिलता है, सेल्फ को मिलता है, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर. ठीक है. अब इस मेडिकल फैसिलिटी अगर आपने इंडिया में है, इंडिया में ली गई है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में है तो एग्जाम्प्ट है. अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज़ है तो एग्जाम्प्ट है. हेल्थ इंश्योरेंस है मतलब एम्प्लॉयर ने पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम दिया है तो वो एग्जाम्प्ट है.
कोई रीइम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉय फॉर इंश्योरेंस ऑफ हिज हेल्थ और द हेल्थ ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इट विल बी एग्जाम्ड. ठीक है. In case of a private clinic and dispensary, it will be taxable. If it is in private clinic and dispensary, it will be taxable. So the interesting part है इंडिया में वाले में आपको कुछ नहीं है, बस एक अगर आपने प्राइवेट क्लिनिक डिस्पेंसरी लिया टैक्सेबल होगा. आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लिया, आपने किसी अप्रूव्ड हॉस्पिटल स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिया, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में लिया, तो आपका एग्जाम्प्ट होगा. ठीक है. बट आपने प्राइवेट क्लिनिक और डिस्पेंसरी में ले लिया तो वो टैक्सेबल होगा. अब ये हो गई बात इन इंडिया की. अब आउटसाइड इंडिया के केस में आपको दो चीज़ें देखनी है कि स्टे एंड ट्रीटमेंट, जो स्टे है और ट्रीटमेंट है, उसमें आपके स्टे और ट्रीटमेंट में दो जोग आ जाएंगे. एक तो पेशेंट जिसका ट्रीटमेंट होना है और एक अटेंडेंट उसके साथ. तो इसमें जो एग्जाम होता है इट इज़ एज पर परमिटेड बाय आरबीआई, जो आपको पेपर में एग्जाम में दिया होगा कि कितना लिमिट है. ठीक है. लेकिन अगर फेयर का केस है उसमें भी आपको पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट देखना है, और वो एग्ज़ाम तभी होगा अगर ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2 लाख या 2 लाख से कम है. ठीक है. अब वो एग्ज़ाम तभी होगा जब जीटीआई आपकी 2 लाख या 2 लाख से कम है. इससे ज़्यादा हुई तो एग्ज़ाम नहीं होगा. ठीक है. अब इसमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है. इन दिस एक रिस्पेक्टिव इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है. ये क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 ICI स्टडी मैथ से. कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूसिट रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव्ड बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. मेडिकल क्लेम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी 7,000 है. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर 5,000 है. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल एग्जाम्प्ट होगा. और ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर इन अ प्राइवेट क्लिनिक. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर 68 years old and dependent by family doctor. And treatment of G's sister which is dependent in nursing home. Treatment of Mr. G's brother independent 6,000. Treatment of Mr. G's father 5 years and dependent abroad में आप इसका दो अलग पहले इन इंडिया निकाल लीजिए एंड देन आप उससे देखिए अब्रॉड में क्या होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट है. तो पहले इंडिया वाला कवर कर लीजिए. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर 75 years एंड डिपेंडेंट अब्रॉड. ये पहले यहाँ पे इन्होंने पहले अब्रॉड वाला पॉइंट कवर कर दिए, देन इन्होंने इंडिया के. ठीक है. हम पहले अब्रॉड वाला कवर कर लेते हैं. 50,000 है. ठीक है. ट्रीटमेंट था और स्टे था. स्टेइंग अब्रॉड ऑफ पेशेंट एंड ट्रीटमेंट 50,000 प्लस 30,000 80,000. एग्जाम्पशन होगी 75,000. इसमें आपको लिमिटेड स्पेसिफाई है विच इज़ 75,000. रेस्ट 5,000 विल बी टैक्सेबल. अब मेडिकल क्लेम पेड फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी एग्जाम्प्ट हो गया. ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय फैमिली डॉक्टर टैक्सेबल. ठीक है. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जीज फादर डिपेंडेंट बाय फैमिली डॉक्टर 8,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जी सिस्टर इन अ नर्सिंग होम टैक्सेबल हो जाएगा. प्राइवेट क्लिनिक टैक्सेबल हो जाएगा. ट्रीटमेंट ऑफ मिसेस जीज ब्रदर इंडिपेंडेंट हैं 6,000 हो जाएगा. तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा. तो आपका टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट 39,000 हो जाएगा. अब इसमें एक बार और गो थ्रू मैं कर लेती हूँ कि क्योंकि इसमें बस आपको ध्यान रखना है कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट वाला एरिया. इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है. एक बार फिर से गो थ्रू कर देती हूँ विद द मेडिकल फैसिलिटी. मेडिकल फैसिलिटी अगर आपका इसमें किस पे बेनिफिट मिलेगा, स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर. दिस आपको दिमाग में रखना है कि स्पाउस चिल्ड्रन की बात नहीं हो रही है, डिपेंडेंट पेरेंट्स ब्रदर एंड सिस्टर्स की बात हो रही है. इसमें ये क्वेश्चन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये उठाया. ठीक है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्पेंसरी एग्जाम्प्ट होगा. अप्रूव्ड हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डिजीज एग्जाम्प्ट होगा. पेमेंट मेडिक्लेम एम्प्लॉय ने दिया एग्जाम्प्ट होगा. रीइम्बर्समेंट हो रहा है. ठीक है. तो उस केस में एग्जाम्प्ट होगा. अब लेकिन प्राइवेट क्लिनिक डिस्पेंसरी में दे रहे हो, कहीं और ले रहे हो, इनके अलावा कहीं और ले रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है. ये आउटसाइड इंडिया वाला कवर हो गया. मैं इन इंडिया वाली बात कर रही हूँ. तो उसमें ये याद रखना है कि बेनिफिट किसको इसको मिलना है, डिपेंडेंट कौन रहेगा और इंडिपेंडेंट कौन केस में है. ठीक है. ठीक है. दिस विल कवर. ठीक है. ये आपका फॉलोइंग विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट.
The next will be the fringe benefits. So there are some benefits which a employee can avail in his employment. First is the free lunch. For this, the ₹50 per meal will be exempt. Tea, coffee, non-alcoholic beverages, light refreshment will be exempt. गिफ्ट अगर कैश में है तो फुली टैक्सेबल, और अगर इन काइंड है तो 5,000 एग्जाम्प्ट एंड रेस्ट अबव इज टैक्सेबल. इसका मैंने क्वेश्चन दिया. गिफ्ट के बारे में हम डिटेल ऑफ IFS में पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ठीक है, उसमें आप पढ़ेंगे. गिफ्ट को डिटेल में है, उसमें वाला पॉइंट भी कवर होगा. इसमें मैं एक इलस्ट्रेशन ले ली थी 28 पे, जो सैलरी की ही चैप्टर में कवर है. कि इलस्ट्रेशंस करने बहुत ज़रूरी है, वरना आपको अंडरस्टूड नहीं होगा. इसमें इलस्ट्रेशन जितने प्रैक्टिस हो सकें उतने कीजिए. ठीक है. 16, 18 I talked about 28, 26. It's 29. 8 मिनट नहीं होगा. 28 हेयर इट इज़. तो इसमें सिर्फ गिफ्ट वाली बात हो रही है. इसमें हमें टैक्सेबल परक्विजिट बताना है. इन द फॉलोइंग केस determine the taxable perquisite in the following case. Miss Shraddha received a wristwatch of 3,000 on 17/7/2020 and the golden chain worth 12,000 from her employer Mr. Raju. ठीक है. 3,000 प्लस 12,000 माइनस 5,000. 5,000 तक एग्जाम्प्ट होगा ना, और रेस्ट विल बी टैक्सेबल. दिस 10,000 विल बी टैक्सेबल. मिस राखी ने 11,000 कैश गिफ्ट मिला है फ्रॉम एम्प्लॉयर. कैश विल ऑलवेज बी टैक्सेबल. इसमें कोई लिमिट का नहीं देखना. ठीक है. Mr. Aniruddha is working with X and Company, a partnership firm. During the year, the employer firm gifted a diamond ring worth ₹80,000 to wife of Mr. Anuradha. ठीक है. टैक्सेबल परक्विजिट विल बी 75,000, क्योंकि काइंड में है, रिंग है, कैश नहीं है. कैश तो पूरा हो जाता. काइंड में है तो 5,000 विल बी एग्जाम, रेस्ट विल बी टैक्सेबल, मीन 75,000 विल बी टैक्सेबल. सो दिस कंप्लीट्स विद योर गिफ्ट बेनिफिट. ठीक है. नेक्स्ट इज़ द फ्री जर्नी टू एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवेज एयरलाइंस दी जाती है, फ्री होती है वो. ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन. दिस इज़ ट्रैवलिंग, टूरिंग एंड अकोमोडेशन. अगर ये चीज़ें ऑफिशियल पर्पज़ के लिए गई हैं तो एग्जाम्प्ट होंगी. अगर लेकिन ये ऑफिशियल टूर एक्सटेंड हो गया पर्सनल टूर की तरह, तो एक्सपेंस टूवर्ड्स सच एक्सटेंडेड टूर विल बी टैक्सेबल. ठीक है. अगर ऑफिशियल टूर की वजह पर्सनल टूर बन गया ये, देन जो एक्सटेंडेड टूर जो पर्सनल बन गया उसको वो टैक्सेबल हो जाएगा. इफ़ एनी मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज़ टेकिंग अलोंग विद द ऑफिशियल टूर. अगर कोई घर का कोई मेंबर लेके गए साथ में ऑफिशियल टूर के लिए, तो एक्सपेंस टूवर्ड्स सच मेंबर शैल बी टैक्सेबल. नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अब ये यूज़ ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ़ द एम्प्लॉई यूजेस एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल असेट, द अदर देन द असेट्स फॉर विच द प्रोविजंस हैव बीन मेड belonging to employer. If the employee uses any movable asset which is belonging to employer, then such facility is taxable in the hands of all employees. The value of such benefit, the value of such benefit, wait एक minute, the value of such benefit is determined as per the following table. ठीक है. इसमें अब 2 क्लासिफिकेशन होता है कि एम्प्लॉयर ने वो चीज़ ओन कर रखी है या हायर पे ले रखी है. एम्प्लॉयर ने वो चीज़ ओन कर रखी है या हायर पे ले रखी है. अगर एसेट उन्होंने ओन कर रखी है तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट उसका परक्विजिट वैल्यू हो जाएगा. और अगर एसेट हायर कर रही है, जितने भी चार्जेस पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर होंगे वो आप उसके परक्विजिट वैल्यू में आ जाएंगे. ठीक है. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं कि एनी सम चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द वैल्यू डिटरमाइंड एज अबव.
कोई भी अब इसके अलावा इसमें से अगर जैसे 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, अगर इसमें से कोई आपने एम्प्लॉई से कोई चार्ज किया तो वो आप डिडक्ट कर देंगे। अगर कंप्यूटर लैपटॉप एक्सेट्रा इट इज़ एग्जाम्प्टेड परक्विजिट, अगर कंप्यूटर लैपटॉप का यूज़ हुआ है तो इट इज़ अ एग्जाम्प्टेड परक्विजिट। अगर मूवेबल एसेट में, इसमें जो मूवेबल एसेट है इसमें कार इंक्लूड नहीं होगी, कार के लिए एक अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है, कार का प्रोविजन अलग है, वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट सोल्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने मूवेबल एसेट सोल्ड कर दिए टू द एम्प्लॉय तो उस केस में क्या होगा, ये मैंने मैथ से हम पढ़ेंगे एक बार, इसको बहुत अच्छे से दे रखा है उसमें। इन केस ऑफ मूवेबल सोल्ड बाय द एम्प्लॉयर, वेट, हाँ मैथ से पढ़ते हैं इसको, इसलिए मैंने टाइप नहीं किया इसको, इसमें बहुत अच्छे से गिवन है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स हम ये पढ़ चुके हैं, हाँ ये है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल एसेट्स सोल्ड बाय एन एम्प्लॉयर इफ द सेल प्राइस इज लेस देन द रिटन डाउन वैल्यू। अगर सेल प्राइस जो है, जो सोल्ड कर रहा है वो कम है रेदर देन द रिटन डाउन वैल्यू, देन जो डिफरेंस होगा वो आपका परक्विजिट होगा, वो एम्प्लॉय के हाथ में होगा। सेल प्राइस जितनी है वो आपकी कम है देन द रिटन डाउन वैल्यू, तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा, रिटन डाउन वैल्यू क्या होगी, जिसने जो एम्प्लॉयर ने जिससे ओरिजिनल कॉस्ट पे लिया होगा और इतने टाइम पे फॉर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, जो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू होगी। और जितने अमाउंट उसने एम्प्लॉय से चार्ज किया उसके अगेंस्ट, उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो उसके हाथ में परक्विजिट की तरह चार्ज होगी। अगर वो पॉजिटिव होगी, ऑफकोर्स इट विल बी पॉजिटिव, देन इट विल बी चार्ज ना, ठीक है। तो इन दैट केस दैट विल द वैल्यू विल बी अ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं। द रेट्स एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स फॉलोज। अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मीन्स क्या है इधर, डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइसेस, लाइक इसमें डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइसेस जो है वो कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर्स आते हैं। कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर्स, दे डू नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड अप्लाइंसेज, हाउस होल्ड अप्लाइंसेज नहीं आएंगे इसमें, दे इंक्लूडेड द डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइसेस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हेयर मीन्स अ डाटा स्टोरेज एंड हैंडलिंग डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, डिजिटल डायरीज एंड प्रिंटर्स। दे डू नॉट इंक्लूड हाउस होल्ड अप्लाइंसेज लाइक वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, मिक्सर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। स्लैश कंप्यूटर, द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है 50%, रिड्यूसिंग बैलेंस पे। मोटर कार है 20%, इट विल बी रिड्यूसिंग बैलेंस। अगर इसके अलावा कोई और एसेट है तो 10% का डेप्रिसिएशन होगा स्ट्रेट लाइन पे, ये ध्यान रखना है। जो अगर मोटर कार, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा कोई और एसेट है तो वो स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिसिएशन लगेगा उसका, ठीक है। अब मैथमेटिकली मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ओवर बता चुकी हूँ इस चीज़ को कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट कितना पड़ा एम्प्लॉयर को, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ड्यूरिंग विच सच एसेट इज़ यूज बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर ने जब तक उस सेट को यूज़ करा उसका डेप्रिसिएशन कुछ तो लगा होगा ना, ये तो नहीं खरीद के एकदम दे दी, तो कुछ डेप्रिसिएशन जो लगा होगा उनका इतने टाइम में, मतलब इतने टाइम खरीद के वियर एंड टीयर की वजह से, तो वो माइनस करेंगे एंड द रेस्ट विल बी द रिटन डाउन वैल्यू। और जो वो एम्प्लॉय से चार्ज करेंगे उसके अगेंस्ट, उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका पॉजिटिव हुआ तो परक्विजिट हो जाएगा। अब इसे पार्ट ऑफ द ईयर के लिए डेप्रिसिएशन नहीं करना, तो इसलिए मैंने फोर्स दिया कंप्लीटेड ईयर, इट शुड बी अ कंप्लीटेड ईयर, डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी चार्ज फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, इट शुड बी चार्ज फॉर द कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। आई थिंक इसका क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है, बहुत ईजी है, आप ये डेप्रिसिएशन एंड ऑल निकालना, इट्स नॉट अ टफ एरिया। तो आई थिंक दिस कम्प्लीट्स विद द वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल assets sold by an employer, and with this we have covered the following perquisites today itself. First we have discussed the LTC, that is leave travel, leave travel concession. Second we have studied with the medical facility with some illustrations also from ICS study mat and ICMI study mat 2. Fringe benefits and use of movable assets by the employee, which is belong to the employer. And next is the valuation of perquisite in respect of movable assets sold by the employer, ठीक है। So following covers with all the 7 perquisites which is the target of today. So thank you.